Assalamu alaikum students. The theme of today's presentation is electric field, electric intensity, electric flux, and also we are going to discuss electric flux through closed surface. Now, electric field, any region or area around a charge in which an electric test charge would experience an electric force. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सिंपली कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी चार्ज के अराउंड वो एरिया जहां तक इस चार्ज की फोर्स एक्सपीरियंस की जा सकती है, वो एरिया इस चार्ज की फील्ड कहलाता है। यानी जहां जहां तक इस चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्सेस मौजूद होंगी वो तमाम एरिया इस चार्ज की फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ हम इसको कुछ सिंपल यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक चार्ज है लाइक पॉजिटिव चार्ज, अगर हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इस चार्ज के क्लोज करते हैं तो ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो तमाम एरिया जहां पर इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग रही होगी, ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो तमाम एरिया इस चार्ज की फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि वो तमाम एरिया जहां जहां तक इस चार्ज की वजह से लाइंस ऑफ फोर्सेस या इस चार्ज का इफेक्ट मौजूद हो, वो इस चार्ज की फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। वी कैन सिंपली डिफाइन इट एज द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द forces per unit positive test charge placed at that point. Simple अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो E is the electric intensity and F is the force and Q is the charge. Now E is equal to F upon Q. तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिंपल फोर्स अपॉन चार्ज को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम अपनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं तो E इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम्स, फोर्स अपॉन चार्ज की वजह से न्यूटन पर कूलम। नाउ हियर वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर्मूला इनटू अनदर फॉर्म। नाउ वी हैव E इज इक्वल टू F अपॉन Q which is equation number 1. Now, according to Coulomb's law, we have F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Now, putting the value into equation number 1, we get E is equal to K Q naught upon R square divided by Q naught. यहाँ ये Q naught cancel हो जाएंगे. So, finally, we have E is equal to K Q upon R square. This is the final formula or another form of the electric intensity. Now here R cap is the unit vector or position vector. Now this is the example of your book, example number 11.3. A metallic sphere of diameter like this carries a charge of 600 microcoulombs. Find the electric intensity in a part at a distance of 50 centimeter from the center of the sphere, and in second part at the surface of the sphere. Now here is the key point. We have the electric field due to a charged sphere has spherical symmetry. इसका सिंपल मतलब यह है कि जब भी हमारे पास कोई भी चार्ज किसी भी स्फीयर के सेंटर पे प्लेस किया जाता है तो उससे इक्वल लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट हो रही होती हैं। Therefore, a charge sphere behaves for external points as if the whole charge is placed at its center.
नाउ अब हम अपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट वी हैव डेटा. For a part, we have distance of a charge from the sphere, which is r is equal to OB is equal to 50 सेंटीमीटर. अगर हम अपने 50 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर लें, सो वी आर गोइंग टू डिवाइड 50 डिवाइडेड बाय 100. सो 50 इंटू एक्सपोनेंट 10 power minus 2 meters. In part B, we have R is equal to D divided by 2 is equal to OA divided by 2 is equal to 30 over 2 into 100, or 30 over 2 into 100 to convert into meters. So after solving this, we have 0.15 meters. Now charge on a sphere is small q is equal to 600 microcoulomb is equal to 600 exponent minus 6 coulombs. Now we will have to find capital E, or electric intensity, which is capital E is equal to question mark. Now in solution, we know that the formula of the E, which is E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught into Q upon R square. This is our equation number 1. For a part, putting the values into equation number 1, now these values we get E is equal to 9 exponent 9 into 600 exponent minus 6 divided by 50 exponent minus 2 with whole square. After solving this formula or this relation, we have E is equal to 21.6 exponent 6 Newton per coulombs. Now for the part B, we have this relation, like E is equal to 9 exponent 9 into 600 exponent minus 6 coulombs per 0.15 square. Now finally we have E is equal to 24 exponent 7 Newton per coulomb. Now here is the electric flux. The number of lines of force that pass through the area placed in the electric field. Now students, electric flux एक simple सी term है जिसको हम कुछ इस फिगर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये हमारे पास एक सरफेस है जिसको हम यहाँ पर इस रेड शीट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये इलेक्ट्रिक लाइंस जो इसमें से पास हो रही हैं वो ग्रीन है, और जो लाइंस इसमें से पास नहीं हो रही हैं वो येलो हैं. नाउ तो सिर्फ वो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो इस शीट से पास होती हैं या किसी भी सरफेस एरिया से पास होती हैं, वो इस सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसा कि हम इस फिगर के अंदर देख सकते हैं. नाउ we have a formula for the electric flux or relation for the electric flux, which is simply phi is equal to E dot A. This is a dot product between electric intensity and surface area A. Now if we arrange this dot product, so we have phi is equal to EA cos theta. The number of lines passing through the area will be E into A cos theta depending upon the angle. अगर हमारे पास कोई शीट किसी लाइंस ऑफ फोर्सेस के दरमियान रखी जाती है, प्लेस की जाती है, तो उस सरफेस एरिया का जो भी एंगल
इन लाइंस ऑफ फोर्सेस के साथ फॉर्म हो रहा होगा कॉस थीटा के रिलेशन के साथ हमें फाई यानी कि फ्लक्स का वो रिजल्ट मिल रहा होगा। यानी जिस तरह एंगल चेंज होता जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास फाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो यूनिफॉर्म है और ये जो शीट है इसका एरिया कांस्टेंट है, इसीलिए ये दो टर्म्स कांस्टेंट होंगी। अगर हम अपना एंगल चेंज करते जा रहे हैं तो किसी भी एंगल पर, किसी भी डिफरेंट एंगल पर हमें डिफरेंट वैल्यू मिलेगी इस फाई की। नाउ फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स we have again this formula, phi is equal to E dot A. Now arranging this formula, phi is equal to EA cos theta. Now if we have 0 degree between E and A, so cos 0 is equal to 1. Finally we have phi is equal to EA which is the maximum value of the फ्लक्स। और अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें कि लाइंस ऑफ फोर्सेस के साथ हम अपनी शीट को कुछ इस तरह प्लेस करेंगे कि इसका जो एरिया है वो एरिया लाइंस ऑफ फोर्सेस के साथ अगर पैरेलल होगा तो हमारे पास जो एंगल फॉर्म होगा वो 0 डिग्री होगा। इस 0 डिग्री पे हमें अपने फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। नाउ फॉर द मिनिमम फ्लक्स we know that again the similar formula, phi is equal to E dot A. Now again arranging it, here if we have 90 degree between E and A, so we know that cos 90 is equal to 0, therefore we have phi is equal to 0. Now this is the representation of the surface area and lines of forces। अगर हम अपनी इस शीट को कुछ इस तरह प्लेस कर दें कि इसका एरिया या सरफेस एरिया लाइंस ऑफ फोर्सेस के साथ 90 डिग्री पर हो तो इस वक्त हमारे पास फ्लक्स की मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही होगी। नाउ electric flux through a closed surface. Now here we have two basic points, flux through one patch. What does it means? Now here we have a sphere and at the center of this sphere we have a positive charge. We know that the lines of forces of the charge are equally distributed, therefore इस सरफेस से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी इस Q पॉजिटिव चार्ज की वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही होंगी। अगर हम अपने इस सरफेस को या इस स्फीयर को डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमें यहाँ पर इस सरफेस के वेक्टर एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, जिस वजह से हम इस पूरे स्फेरिकल सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। नाउ अगर हम एक पैच को डिस्कस करें और एक पैच को रिप्रेजेंट करें तो इस एक पैच का जो एरिया है उसकी डायरेक्शन और लाइंस ऑफ फोर्सेस हमें पैरेलल मिलेंगी। अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो वी हैव E इज इक्वल टू वी हैव फाई इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा ए। अगर हम इस फॉर्मूले को ओपन करें तो फाई इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा ए। नाउ अगर हम अपने इस पूरे सरफेस एरिया से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर आ रही हैं तो हर पैच से पास होने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से फ्लक्स को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वी हैव अ रिलेशन। सिंपल हम अपने इस एक पैच के रिलेशन को इन तमाम पैचेस से सम कर लेंगे। सो फाइनली वी हैव फाई इज इक्वल टू सिग्मा ई डॉट डेल्टा ए। नाउ सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन अगर हम अपने चार्ज की देते हैं जो कि किसी सरफेस के सेंटर पे प्लेस किया जाता है तो उससे लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती हैं। नाउ इन केस ऑफ क्लोज्ड सरफेस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स मे बी positive or negative or zero depending upon the number of lines entering or leaving the
surface. Now, here we have three important points. First one is the electric flux is positive. कब electric flux हमारा positive होगा? If net numbers of electric field lines are leaving the surface, that is, there is source of field lines in the closed surface. Now, second point is this: we have the electric flux negative when we have the net numbers of electric field lines are entering the closed surface, or more field lines are entering than leaving the surface. There is a sink of the field lines in the closed surface. Means कि अगर हमारे पास इस सरफेस पे इस स्फीयर के सेंटर पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो इस सरफेस में इन हो रही होंगी, तो हमारे पास इस कंडीशन में नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिल रहा होगा. नाउ फाइनली we have the electric flux 0 if net numbers of electric field lines are entering are equal to field line leaving surface, or no field line intercepting the surface. Now students, today we have a very simple question. जैसा कि हमें मालूम है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्जेस से आउटवर्ड और नेगेटिव चार्जेस में इनवर्ड होती हैं, तो अगर हम अपने इन पॉजिटिव चार्जेस को एक स्फीयर या एक सर्किल के ऊपर अरेंज करते हैं, इस स्फीयर या इस सर्किल की सरफेस पे अरेंज करते हैं, तो इस स्फीयर या सर्किल के अंदर लाइंस ऑफ फोर्सेस जो कि इन चार्जेस की वजह से हमें मिल रही होंगी, उनको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर पाएंगे, यानी उनकी क्या रिप्रेजेंटेशन होगी. बिल्कुल इसी तरीके से ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, इनकी वजह से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो इस स्फीयर के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट की जाएंगी. ट्राई टू गिव द आंसर. Thank you so much, students. Have a good day.